of circuit, flip-flop circuit in the various electronical equipments. उसमें ये circuits use होती हैं, flip-flop circuits. Can anyone aware about this circuit? और कहीं पे सुना हो किसी ने ऐसा कुछ? Any one of you? Himanshu? No? Okay. Anyone from A or B division, can you heard about this? Okay, if no, then it is okay. We'll go for it. I'll just share with you the PDF for the same. That will go ahead with this. What is flip-flops? This is a type of circuit, right? Same way as we have the half adder and the full adder circuit we have discussed yesterday. Same way, this is also the one type of circuit which will be used in many of the equipments, right? And the main function of this circuit, we'll discuss in detail that what will be the main function of this flip-flops. See here, I hope. Yes, in A or and B division. Yes, in both the division it is visible, so we'll go for it. Okay, so what you mean by flip-flop first, this is an explanation of it, and we need to learn also the various types of it or different kinds of flip-flop use according to the characteristics, and whichever in the equipment, whichever circuit will be required, we will use that. So many a times an MCQ question can also be asked that how many states are there for the flip-flop. So flip-flop is a type of circuit which contains the two states only. How many states are there for this circuit? That is only the two state. It can be 0 or it can be 1. That means it will be 0 means it is a off and 1 means it is a in on state. So a flip-flop is a circuit which contains only the two states that are 0 and 1. That is off and on, right? It is return reverse. 0 means it is a off. First here off should be there, and 1 means it is an on. And it is also the second characteristics of the flip-flop is it also used to store the information about the state. मतलब वो 0 है या 1 है, on है या off है, वो store भी होता है. And we can also change the state of the flip-flop by sending the signals. By sending the signals, मतलब one clock signal will be passed to that, and based on that signal, the change the state of the flip-flop. That means अगर flip-flop का अभी का state 0 है, मतलब वो off है, तो we can make it on. अगर वो on है, तो we can make it off. But for that we need to send some signal. What you mean by signal over here? Can anyone tell me signal मतलब क्या? What you mean by signal to be passed to any of the circuit? Signal मतलब क्या? कुछ कमांड पास करना, कुछ उसको बताना, ऐसी चीज बताना कि भाई नाउ यू नीड टू चेंज. यस, सिग्नल्स आर द इनपुट्स. Very good. Yes, we need to pass, but along with the normal input, we can also have to pass one extra input here that is called the clock input. See, our all the functions of the CPU will be managed by the one clock, right? That will be synchronize the task of the CPU. तो यहाँ पे भी to synchronize the task or to synchronize the state of flip-flop will require one clock signal, right? That will be used to synchronization. You know, understand the concept. What you mean by the word the synchronization? The all the things will be going in a sequence or in a proper way. है ना? So the synchronization is required. That synchronization will be done by using the signal. वो सिग्नल से होगा. तो यहाँ पे हम दिस flip-flop अब वो कहाँ-कहाँ पे यूज होता है? So that will be used in the number of electronics equipments like in our computer, like any communication equipments, right? This flip-flops will be used practically, lively. ये हमारे कंप्यूटर्स में बहुत सारी जगह पे यूज होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से यूज होता है, राइट? एंड जनरली दिस flip-flop will be made up of gates. वो किससे बना होता है? So everywhere there is a gates are basic in everything, every circuit, right? So you need to be must भी गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ गेट्स. वो अच्छे से करना है बिकॉज हर एक जगह पे हर एक सर्किट को बिल्ड करने के लिए वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ गेट्स ओनली. So again the flip-flops are the circuit. They are interconnected to form the logic gates for the digital integrated circuits, ICs. Might be you learn this in semester 1. Integrated circuits which will be used in our computer for creating the memory chips and microprocessors. आईसी शायद आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी यूज होता है. इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहाँ कौन कौन सी जगह पे यूज होता है? रादर देन द कंप्यूटर दिस आईसीज विल बी यूज इन द मैनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और डिवाइसेस दैट विल बी यूज इन अवर डेली लाइफ. कहाँ कहाँ पे आपने आईसीज ऐसा वर्ड सुना है विच विल बी यूज इन द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? They are nothing but the chip that will be manage your electronic equipment. Suppose the air conditioners, right? Suppose our microprocessors,
our memory chip will require to have this type of circuits, right? That is called the digital integrated circuits. Integrated circuit उसको बोलते हैं, that is called the ICs, right? ठीक है, so this is what you can consider as an description about the flip-flop. Now we can have a different kinds of flip-flop. So here we are going to discuss about the four different kinds of flip-flop. The first, it is the SR. What do you mean by SR, or we can also call it as RS, right? Where R is set, reset, and S is the set. So set, reset flip-flop. Second, we have the JK flip-flop. Third, we have the D flip-flop, where D is considered as data. And third, we are going to learn the T flip-flop, that is the toggle. These are the four different kinds of flip-flops that we are going to learn in this topic. And what are the different characteristics when we are passing the input, what we'll get as an output, that also we are going to discuss. Okay, now how many inputs are there? Because it is a circuit which also accepts the input and that will be produce the output. So how many inputs and how many outputs it will be having? So a flip-flop can include 0, 1 or 2 inputs. Can one flip-flop is something like that, can have the 0 input, can have the 1 input, can have the 2 input signals, or a clock signal is also the extra rather than the input. A clock signal, as I've told you, that to synchronize the operations of the flip-flop will require this clock signal, and also to change the state of the flip-flop will require the clock signal, so that the it will be, whenever it will be in off state, we can change it into the on, and from the on it will be changed into the off, something like that, and it will be produces the output signal. Okay, and sometimes many of the flip-flop can also have the clear input signal. That means if we want to reset द पर्टिकुलर डिवाइस, राइट? कई बार बहुत सारे डिवाइस में आपने देखा होगा कि रीसेट का ऑप्शन होता है ना? सो रीसेट विल बी, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो वापस आ जाएंगे. व्हेन विल रीसेट एनी ऑफ द डिवाइसेस, द ओरिजिनल सेटिंग्स ऑफ द डिवाइसेस विल बी कम्स बैक, राइट? द डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑफ द डिवाइसेस विल बी कम्स बैक. वी हैव आल्सो द सेम ऑप्शन इन अवर मोबाइल फोन्स आल्सो, है ना? हम रीसेट कर सकते हैं, तो जो सारे सारे चेंजेस हैं, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, वो वापस आ जाएंगे, है ना? द फोन विल बी इन द ओरिजिनल फॉर्म, डिफॉल्ट मोड. ओके, सो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है. यू कैन ऑल्सो मेक द फ्लिप फ्लॉप इन इट्स ओरिजिनल स्टेट बाय रीसेटिंग इट. तो रीसेट का भी सिग्नल हो सकता है, क्लियर का भी सिग्नल. क्लियर सिग्नल इज सेम लाइक योर रीसेटिंग द कंटेंट्स, राइट? रीसेटिंग फॉर द फ्लिप फ्लॉप्स. Okay, so this is what is an explanation about the flip-flop. The main thing you need to remember about the flip-flop, that it is having the only the two state, rather it is 0, rather it is 1, right? And also it is used to store the information. Information भी वहाँ पे store होती है. Practically, these flip-flops are nothing but they are the circuits and used in number of electronics equipments, right? You can go further on Googling it, okay, where the various circuits will be there, or various electronic devices where these circuits are going to be used, right? And we are made up of the flip-flop by using the various logical gates. And here we are going to discuss about this different four types of flip-flops, right? Okay, एक एक करके शुरू करते हैं. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो you can just ask to me. And it is very important question from your exam point of view. 7 mark whole question will be asked for a single flip-flop. या तो दो flip-flop को मिला के एक question बना के पूछा जाता है. A very important question. Yes, so be concentrate, have a concentrate over here. Okay, SR or this can be also called as RS. SR बोल सकते हो या RS भी बोल सकते हो उसको. What you mean by this S and R? As I have told you that SR stands for set. S means set and R means reset. And it is the most common type of flip-flop, a basic flip-flop we can say. Yes, a most common type of flip-flop, right? So for every flip-flop you need to draw the three things. हर एक फ्लिप फ्लॉप, ये जो हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स की बात की है, वो चारों चार फ्लिप फ्लॉप में हम तीन चीज ड्रॉ करेंगे. कौन सी तीन चीज? ब्लॉक डायग्राम, we can have the truth table and the logic diagram, as we have done in the half adder and the full adder. Same we have here also. एक तो सबसे पहले हम उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, कितने इनपुट्स हैं, कितने आउटपुट्स हैं. देन हम उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, और उसके बाद हम उसकी सर्किट देखेंगे कि एक्चुअली गेट से ये सर्किट कैसे बनती है. ओके, ठीक है. सो द फ्लिप फ्लॉप जो ब्लॉक डायग्राम में दिखा है, दिस डायग्राम विल बी शोइंग यू द थ्री इनपुट्स. कौन से तीन इनपुट्स है? एस एंड आर तो है ही. उसके अलावा टू चेंज द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विल रिक्वायर द क्लॉक सिग्नल, दैट इज विल बी हियर, इट इज कंसिडर एज सी, है ना? उसको डेजिग्नेटेड बाय सी. ओके, सेट विल बी एस, reset will be R, and the clock will be C. So how you are going to show in the block diagram? See, on the left hand side what you see, that is called the block diagram.
right? In which we are passing the number of inputs and will produce the number of outputs. So see here, how many inputs you see, as we have discussed earlier, that it is having S, clock and R, and it will be produces. Normally it will be produce only the Q. But if you also want to consider the complemented output, then here you can show the Q bar, but it is not necessary every time to show this one. So अगर ये दिखाओगे नहीं तो भी चलेगा Q bar, because we are not going to use that in the truth table. So it is okay if you're not showing this Q bar, which is a complemented output of this flip-flop, right? So not to show this arrow of the output line, it's okay. अब यहाँ पे ध्यान रखो कि भाई इस जो ब्लॉक डायग्राम है इसका ऑपरेशन क्या है, व्हाट आर द मेन ऑपरेशन ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, मतलब हाउ इट विल बी गोइंग टू परफॉर्म, बेस्ड ऑन दैट वी आर मेक द ट्रूथ टेबल ऑफ इट. तो वी आर हैविंग द सी क्लॉक विल बी ऑलवेज ऑन द हाई, सो नो नीड टू शो द क्लॉक इन द ट्रूथ टेबल, दो इट इज अ वन ऑफ द इनपुट. वी आर नॉट गोइंग टू शो इट ओवर हियर बिकॉज इट इज ऑलवेज द वैल्यू 1. क्लॉक की हमेशा वैल्यू अप ही रहेगी, सो दैट इट विल बी वर्किंग. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्लॉक नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, दिखाओगे तो सिर्फ ऐसे एरो करके अप एरो दिखा देना है, दैट्स इट. Okay, so we are considering here the two inputs, that is S and R. Obviously we are having the combination of bits are 4 bits, 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Now see, first you need to understand about the operations of this flip flop. तो क्या होगा इफ नो सिग्नल एट द क्लॉक इनपुट, सपोज क्लॉक इनपुट में कोई भी सिग्नल नहीं है, तो उस टाइम पे आउटपुट पे क्या दिखाएगा, वो क्यू पे क्या होगा, इट कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एस एन आर, कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होगा इफ देयर इज नो क्लॉक सिग्नल विल बी पास टू द सर्किट, राइट? अगर क्लॉक सिग्नल पास नहीं करोगे ना तो सर्किट का कुछ भी चेंज नहीं होगा, नथिंग टू बी चेंज इन द सर्किट, इट विल बी एज इट इज, देयर इज नो चेंज. सो दैट विल बी योर फर्स्ट, दैट इज इफ बोथ द वैल्यूज ऑफ एस एंड आर आर 0 0, देन व्हाट विल बी यू गॉट ऑन द आउटपुट, देयर इज नो चेंज, मतलब प्रीवियस जो स्टेट है ना वही का वही रहेगा, अगर वो 1 है तो 1 रहेगा, अगर वो 0 है तो 0 ही रहेगा, है ना? इफ देयर इज नो क्लॉक सिग्नल, दैट मीन्स इफ यू हैव बोथ द एस एंड आर आर 0 0, ट्रूथ टेबल में देखना है तो देयर इज नो चेंज. ये जो फर्स्ट लाइन है ना वो ये बोल रही है अगर दोनों की वैल्यू 0 0 है तो सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, उसका जो प्रीवियस स्टेट है वही का वही स्टेट मेंटेन रहेगा, देयर इज नो चेंज. अब नेक्स्ट देखो, इफ वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 0, ऐसा स्टेट ट्रूथ टेबल में कहाँ पे है, यहाँ पे देखो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो. व्हेन एस इज 1 एंड आर इज इक्वल टू 0, एस मतलब क्या, सेट, एंड आर मतलब क्या, 0, मतलब रीसेट, राइट? तो अभी एस की वैल्यू 1 है, मतलब एस मतलब योर सर्किट विल बी सेट, राइट? 1 मतलब सेट होगा, सर्किट सेट होगा, मतलब योर सर्किट विल बी हैविंग द वैल्यू 1. तो आपका अगर एस का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स यू आर हैविंग द आउटपुट ऑन द क्यू दैट इज 1, राइट? तो यहाँ पे वही लिखा है कि व्हेन एस इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 0, so your clock will be changed your circuit from 0 to 1, that means on the output line q it is set to 1, या आपकी सर्किट सेट होगी क्योंकि s की वैल्यू 1 है. मान लो रिवर्स ऑपरेशन है, व्हेन s इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1, अगर s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1 है, उसका मीनिंग क्या होगा, your circuit will be reset, मतलब all the contents will be clears to 0, it will be change the state, c कहाँ पे चेंज हो जाएगा, c will be clears to 0, वो 0 हो जाएगा, right? तो you're on the queue, you got the 0, मतलब your circuit will be in a resetting form when value of r is equal to 1. पर suppose मान लो कि दोनों की वैल्यू 1 है, if both the inputs are having value 1, that is s and r, so as we define it, दोनों की वैल्यू 1 है तो क्या डिसाइड करोगे, सेट होगा या रीसेट होगा, वो नहीं पता चलेगा सर्किट को. तो इट इज एन अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन, और वी कैन से इट इज एन इनडिटर्मिनेंट कंडीशन. हम उसको क्या बोलेंगे ऐसी कंडीशन को, देखो यहाँ पे, if both s and r is equal to 1, the output is unpredictable, can be go either 0 or can be go either 1, we cannot predict it कि वो 0 होगा या 1 होगा, because दोनों की वैल्यू 1 है, तो we cannot predict the state of the circuit, so that particular state is called the indeterminate state, या तो फिर हम उसको बोलेंगे unpredictable state. ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू 0 है, एज आई हैव टोल्ड यू दैट द आउटपुट हैज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा आउटपुट में जब 0 0 होगा. तो यहाँ पे फिर से एक बार ट्रूथ टेबल देखते हैं, अगर बोथ आर 0 0 देन देयर इज नो चेंज, दैट इज ऑन द क्यू, ये आउटपुट है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इनपुट्स एंड आउटपुट. व्हेन इट इज 0 1, 0 1 मतलब अभी 1 कौन है, दैट इज अ रीसेट, मतलब योर सर्किट विल बी रीसेट, सो इट इज गोइंग टू बी 0.
When value of s is equal to 1, then your circuit will be set. So on the output line q you got the 1, and if both the values are 1 1, that both s and r are 1 1, so that particular condition is called the indeterminate condition. That means it is an unpredictable condition. We cannot predict whether the circuit is 0 or whether the circuit will be in the 1 condition, right? So these are what the operations or the functioning of your flip flop, that is SR. आपका ये functioning है, और based on this functioning you can also have, पहले ट्रूथ टेबल लिखने के बाद भी ये लिख सकते हो, या तो ये लिखने के बाद भी आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो. Anything can be there. First you write the operations or the functions, and then you prepare the truth table, or once you prepare the truth table you write this explanation about the truth table. ये सिर्फ इसका explanation है कि how your SR flip flop will going to be work. यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट अप टू हियर? एक बार ये हाँ बोलो. वो हम आगे देखेंगे, है ना, दैट फ्लिप फ्लॉप. अभी इसमें कोई विनीत, आई एम आस्किंग दैट राइट नाउ यू हैव डाउट, एनी डाउट इन दिस फ्लिप फ्लॉप? जेके स्टिल वी आर नॉट, अभी हम उस तक पहुंचे नहीं है. जो पहुंचे नहीं है उसके बारे में तो ऑब्वियसली यू हैव डाउट्स. अभी जो चल रहा है उसमें डाउट्स है, मैं ये पूछ रही हूँ. ऑलवेज आर आस्किंग द क्वेश्चन आउट ऑफ द बाउंड्री. अभी जो चल रहा है उसमें कोई डाउट है, मैं ऐसा पूछ रही हूँ. जेके वी आर डिस्कसिंग ऑन द नेक्स्ट, है ना. वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस द डी फ्लिप फ्लॉप, वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस द टी फ्लिप फ्लॉप, राइट. हम आगे जो फ्लिप फ्लॉप्स करेंगे उसके बारे में जब डाउट्स आएंगे तो पूछना. अभी इसमें कोई डाउट है, फंक्शनिंग नहीं समझ में आया हो, क्या करना है नहीं समझ में आया हो, ये समझ में आ गया कि तो बाकी के फ्लिप फ्लॉप्स ऑटोमेटिकली यू कैन गॉट वेरी इजीली, बिकॉज दिस अ बेसिक फ्लिप फ्लॉप, है ना. इसका ही यूज करके, इसके डायग्राम का यूज करके आगे के जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं दैट वी आर गोइंग टू बी कंस्ट्रक्ट. ओके, अब एक और चीज लेफ्ट है इसमें, दैट इज वी नीड टू बिल्ड अप अबाउट द लॉजिक डायग्राम ऑफ दिस. सी, कौन सा गेट है ये? कैन एनीवन टेल मी विच गेट इज यूज्ड टू बिल्ड दिस flip flop SR? Can anyone tell me which gate is it? NAND gate. Yes, it is a NAND gate. See, in this मेरी notes में, ये वाली जो notes है उसमें NAND gate से draw किया है. Same, which are the two universal gates? और कौन सा दूसरा यूनिवर्सल गेट है? मैंने आपको बोला था दो यूनिवर्सल गेट्स हैं जिसकी वजह से आप कोई भी सर्किट बना सकते हो. एक तो नैंड गेट था, दूसरा कौन सा था? नॉर था. तो सेम सर्किट यू कैन ऑल्सो ड्रॉ बाय यूजिंग द नॉर गेट. सो वेन एवर यू गूगल इट, अगर आप नेट पे देखोगे तो आपको नॉर गेट से भी बनी हुई सर्किट दिखेंगी. सो एनी वन ऑफ दैट यू नीड टू ड्रॉ ओवर हियर. दोनों यहाँ पे ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है. नॉर गेट से भी ड्रॉ करोगे दैट इज ओके, नैंड गेट से भी ड्रॉ करोगे दैट इज ओके, बट डोंट हैव अ कंफ्यूजन इन बिटवीन कि अगर आपने कहीं पे, क्योंकि मैनी ऑफ द स्टूडेंट विल क्रॉस चेक ऑन द नेट कि भाई मैम सही पढ़ा रही है नहीं पढ़ा रही है. बहुत सारी जगह पे स्टूडेंट्स का ऐसा है ना, क्रॉस वेरीफाई करते हैं. तो अगर क्रॉस वेरीफाई करने में आपको नॉर गेट भी मिलेगा, राइट, सो दैट इज ऑल्सो ओके. Universal gate, and you can use any of that gate to build this flip flop. Okay, but mostly we are using the NAND gates, right, because functioning of NAND gate is very easy to understand and preparing of the circuit is very easy by using the NAND gate. But we cannot omit the NOR also. NOR gate भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो. सिर्फ नॉर गेट यूज करना है तो यहाँ पे आपका लॉजिक डायग्राम में गेट का सिंबल चेंज हो जाएगा. ओके, गेट का सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. आई विल ऑल्सो शोन यू, और मैं आपको दिखाती हूँ कि नॉर गेट से भी कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है. हाउ वी कैन ड्रॉ बाय यूजिंग द, मैं आपको अगर नेट से भी होता है तो मैं आपको वो भी शो करती हूँ. पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है, फिर नॉर गेट वाला देखेंगे. जस्ट द लॉजिक डायग्राम, जस्ट द गेट सिंबल विल बी चेंज. ओके, तो यहाँ पे किसी को ये पता चल रहा है ये एक का इनपुट इसके में जा रहा है, दूसरा ये जा रहा है. व्हाट इज दिस मैकेनिज्म? उसको क्या बोलोगे आप? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड? कि इसका जो आउटपुट है दैट विल बी गोज एज एन इनपुट ऑफ दिस गेट आर, और इसका जो आउटपुट है दैट विल बी गोज एज एन इनपुट ऑफ दिस. तो उसका मीनिंग क्या होगा? क्यों ऐसा है? यहाँ पे दो इनपुट्स तो है ही, दिस आर नॉट एन इनपुट, ये इनपुट नहीं है, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ दो ही इनपुट है, एक नैंड गेट में एस जा रहा है और एक में क्या जा रहा है? आर जा रहा है, ठीक है. कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट यहाँ पे दिखाया है, दैट इज ओके. इफ यू डोंट राइट दैट इज ऑल्सो ओके. पर यहाँ पे क्यू एंड कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट दैट इज क्यू बार. कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट क्यों दिखाया है वो मैं आपको इसकी वजह से एक्सप्लेन करूंगी. देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द सिनारियो विल बी कि this mechanism is called the feedback mechanism. What you mean by that feedback mechanism is the circuit should be known whether it is, suppose वो set है तो at a time वो reset नहीं हो सकता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि अभी सर्किट सेट है या रीसेट है?
How it comes to know? So if the value will be set, suppose मान लो कि यहाँ पे s का value 1 है and r का value 0 है, right? So what it will be goes on the output NAND में क्या हो जाएगा? अगर 0 1 है तो क्या होगा? It will be goes to 1. NAND का सोचो, it will be exactly reverse of or, sorry, it will be exactly reverse of AND. तो एंड में अगर 0 1 है, एंड का गेट याद करो, सॉरी ट्रूथ टेबल याद करो एंड गेट का। इफ वी हैव 0 एंड 1, सो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा, पर ये नैंड गेट है, तो अगर हमारे पास 1 0 है तो व्हाट विल बी गॉट ऑन द आउटपुट? दैट इज 1, रिवर्स ऑफ एंड। तो मतलब योर सर्किट विल बी रीसेट। 1 0 है तो आपका सर्किट, सॉरी, योर सर्किट विल बी सेट, तो यहाँ पे 1 आएगा, हियर इट कम्स विथ 1, तो उसका कॉम्प्लीमेंटेड क्या होगा? 0 होगा, मतलब फाइनली विल हैव योर सर्किट विल बी सेट। अगर मान लो कि आर की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो योर सर्किट विल बी रीसेट, मतलब यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, तो उसको इसको इन्फॉर्म करना है कि भाई यहाँ पे द सर्किट विल बी रीसेट, सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट सेंडिंग द आउटपुट टू दिस एस, to this first NAND gate, and same way the output for this will be passed to this second NAND gate. So to informing each other that what will be the status, वो सेट है या रीसेट है, वो इन्फॉर्म करने के लिए दिस इज कॉल्ड द फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलोगे उसको? वो यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, उसको हम फीडबैक बोलेंगे। व्हाट जनरली व्हाट यू मीन बाय द फीडबैक? फीडबैक इज व्हाट? दैट इट इज जस्ट कंफर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट भी बोलोगे फीडबैक को, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्नॉलेजमेंट। जस्ट इट इज एक्नॉलेजिंग द अदर कि भी हाँ ये स्टेट है, अभी ये चल रहा है, राइट? दैट इज कॉल्ड द feedback mechanism. Everyone is clear, and this is the logic diagram for this by using the gate. You need to draw exactly in the same way. See, ये जो यहाँ पे feedback mechanism यहाँ पे जो दिखाया है ना, उस वो lines को आप, है ना, ऐसे ऐसे कोई घुमा घुमा के नहीं दिखा सकते हो। You can be have this way only, जैसे पहले straight line and the slanting only, these are the only conversion, मतलब you can only need to draw like this। आप ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉस करके या ऐसे नहीं दिखा सकते हो, right? It should be something like this, you need to extend over here and just you can pass it over here, and same way the from the output line of his, you just extend from here and just pass it to the first NAND gate. So this is the basic diagram, or called the logic diagram, for your flip flop, that is SR or RS flip flop. Yes, who is unmuting? Who is unmuting? Having any difficulty, problem? So for the SR, what we have discussed, we have discussed the three things. कौन है ये बीच में? Who is going to be disturbed? The class. अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो विदाउट कोई डाउट नहीं है तो ऐसे ही अनम्यूट नहीं होना है आपको, राइट? इट डिस्टर्ब्स द क्लास। ओके, सो हमने यहाँ पे कौन सी तीन चीज देखी फॉर दी एस आर फ्लिप फ्लॉप? दैट फर्स्ट वी नीड टू हैव द बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट इज एस आर, दैट इज सेट रीसेट। We can have the number of inputs and outputs by showing by using the block diagram, and we can have the truth table. We can also have the write the operations, right? Based on the truth table हम operations लिखेंगे, ठीक है? ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल हो गया, एंड फाइनली विल ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। दिस इज अ फुल 7 मार्क क्वेश्चन, विल बी आस्क इन एग्जाम्स, राइट? तो आपको ऐसे पूरा ऐसे ही लिखना है, राइट? इस हिसाब से आपको लिखना है, यहाँ पे आप अपना कुछ ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है? जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो वैसे ही रहेगा जैसा है। समझ में आ रहा है? येस और नो? एवरीवन इज क्लियर विद दिस एस आर? एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? देन विल अदरवाइज विल गो फॉर द जेके। अगर इसमें डाउट नहीं है तो विल गो विद द जेके फ्लिप फ्लॉप। एनीवन? किसी को कोई डाउट्स हैं, नहीं समझ में आया हो, ऐसा कुछ है? सी इन अ सेम वे, सी आई एम ऑल्सो शेयरिंग विथ यू द वन वेबसाइट। उसमें है ना वो जो मैंने आपको समझा है ना कि 0 है 1 है, वो कैसे वहाँ पे उसको ऐसे दिखाया है, बिट्स वाइज दिखाया है। आई एम जस्ट शोइंग यू, आई एम स्टॉप प्रेजेंटिंग दिस एंड आई एम जस्ट शो यू दैट वेबसाइट, दैट हाउ इट विल बी एक्चुअली शोन। 1 एंड 0 वहाँ पे कैसे दिखाना है वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, हाँ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अभी नहीं आ गया। ओके,
how you can show the number of bits. See here, this is how we can show the block diagram as we have already shown in the that PDF. ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे आप दिखा सकते हो. See here, 2 bits for the set and 2 bits for the reset, right? And you can also symbolize this symbols, that is a feedback mechanism, उसको भी आप symbolize कर सकते हो, that is like A and B दिखा सकते हो. अगर ये ऐसा नहीं दिखाना है तो normally you can show that will be shown in the PDF also, that is also correct. And also here the two states will be discussed over here, that is set and reset state में क्या होता है वो पूरा discussion यहाँ पे है. You just go through it and just refer it in that much detail, then you just refer it, otherwise the PDF can contain it is okay. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, अगर एस की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, राइट? इफ इट इज बोथ द 1 1 1 देयर इज नो चेंज, तो योर सर्किट विल बी सेट. अगर दोनों 1 1 है एट अ टाइम, बोथ आर 1 1, देन योर देयर इज नो चेंज एज वी हैव डिस्कस इन द ट्रूथ टेबल. सेम वे अगर रीसेट सर्किट कब होगी, व्हेन वी हैव द 0 and 1. यहाँ पे देखो रीसेट वाले में एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, मतलब क्यू में क्या होगा आपका 1 आएगा. 1 मतलब योर सर्किट में रीसेट इज 1, देन सर्किट विल बी रीसेट, क्यू डैश पे आएगा 0. व्हेन इट इज 1 1 देयर इज नो चेंज. ठीक है, और इनवैलिड स्टेट कब होगा, व्हेन दोनों की वैल्यू 0 0 है, दैट इज एन इनवैलिड कंडीशन. मतलब वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट पर्टिकुलर, वी कैन नॉट हैव अ आइडेंटिफाई दैट उसका क्या स्टेट होगा अभी, है ना, वी कैन नॉट जज इट state, right? The same thing you can go for it, and you can also have to write something like this, ऐसा भी आप लिख सकते हो. Okay or no? Yes, everyone is clear. Okay, good. Chalo, then we'll go for the second one. Again, I'll share the PDF, right? And we'll go for the second one. See, this is the PDF में जो भी content है, that is a simplified content, which is more easier for you to understand also and to learn also. Better you go for this PDF, right? And you just learn whatever we are going to discuss in the classroom. You can also refer it after the end of the sessions also. Okay, so that it is clear in your mind also. Okay, we are going for the second, that is JK flip-flop. Again, see, every flip-flop will be used and will be setting and resetting purpose. The main purpose of the flip-flop will be the same, right? But here the name is only the different over here, JK. It is the same like your SR flip-flop, but here the JK will be your universal flip-flop, like your NAND and NOR gates, right? Mostly in most of the circuits, the flip-flop which will be going to use it is a JK flip-flop, right? Because it will be considered as an universal flip-flop, right? And the sequential operations of JK flip-flop will be same like your RS flip-flop with only one change. वो change क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ अभी. सेम है पर एक चेंज है यहाँ पे, राइट? मतलब हमने जो देखा था S will be set and R is reset, right? Same here, the J will be for set and K will be for the resetting. But here just the name will be changed. क्यों ऐसा है? Because who is inventing this particular flip-flop, it will be given the name of that inventor. The name of that inventor will be the Jack Calby, right? The JK flip-flop, the name will be kept from the inventor name of the circuit, right? So that's why J and K. The name of the flip-flop is something like this. अब यहाँ पे एक change क्या है? बाकी की सारी functionalities will be same as the SR flip-flop. Only the one change is there, जो हमारा intermediate condition, indeterminate condition था. That means हमारा जब भी value of R and S both are 1 1, हमने जो ऊपर देखा था ना, अगर दोनों की वैल्यू 1 1 है तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द स्टेट, इट इज एन इनडिटर्मिनेंट और अनप्रिडिक्टेबल स्टेट. ये स्टेट को हम जेके में डिफाइन कर सकते हैं. डिफाइन कर सकते हैं मतलब हियर वी आर पुटिंग दैट we are defining the intermediate condition of the SR will be defined in JK. मतलब यहाँ पे वो condition अगर दोनों की वैल्यू 1 1 है तो we can have the toggle state. Toggle मतलब 0 to 1 and 1 to 0. That you mean by the toggling. Toggling मतलब जो भी वैल्यू है उसका opposite वैल्यू हो जाएगा. That you mean by toggling. कैसे होगा देखो यहाँ पे, we can first have to go through the block diagram. Block diagram will be same, only the difference is in place of S and R you just need to mention here J and K, and clock signal is obviously here. ठीक है, जो clock ऊपर नहीं दिखाया था वो ऐसे आप दिखा सकते हो. देखो यहाँ पे like this, you can show the clock signal like this, which will be up arrow, that means it is always the high. Whenever the clock signal will be low, your circuit will not work.
जो हमने आरएस में पहले फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में देखा था, अगर क्लॉक सिग्नल नहीं है तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यू कैन शो द एस आर के जो ब्लॉक ट्रूथ टेबल है उसमें आप ऐसे दिखा सकते हो, क्लॉक सिग्नल विल ऑलवेज द हाई सिग्नल, दैट मीन्स यू आर शोइंग द एरो ऑन द अप साइड, राइट। ऐसे आप एरो दिखाओगे, उसका मीनिंग ये होता है दैट मीन्स इट इज ऑलवेज ऑन अ हाई पोजिशन। अब देखो यहाँ पे इफ बोथ द जे मतलब हियर जे इज अ सेट एंड के इज रीसेट, if both are 0 0 then your circuit have no change, it is same like your SR में भी ऐसा ही था, अगर दोनों की वैल्यू 0 0 है तो there is no change in the circuit, but if the j is 1 and k is 0 that means your circuit will be set, क्योंकि यहाँ पे j का मतलब set होता है, तो आपको q पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, your circuit will be set। and whenever you have the 0 and 1 मतलब k की वैल्यू 1 है मतलब your circuit will be reset, तो you got 0 on your q output line and 1 1 यहाँ पे थोड़ा चेंज है, when both the values are 1 you have the toggle conditions, toggle state। toggle मतलब क्या है वो explanation में देखो, it is a complemented condition, राइट। मतलब अगर 0 है, प्रीवियस स्टेट 0 है तो वो 1 हो जाएगा, 1 है तो वो 0 हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ indeterminate state of RS here we have defined the state that is the complement state and it is also called as the toggle state। बाकी का जो description है that will be the same like that। So the J input will be equivalent to the S input of SR flip flop, that means it is a set, and K input will be equivalent to the R input, that is clear input of SR flip flop। और बाकी का ऑपरेशन तो सेम है, सिर्फ एक ही ऑपरेशन में चेंज है, ये एक ही कंडीशन में चेंज है दैट वी कैन, जो वहां पे इनडिटर्मिनेंट था वो स्टेट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कंडीशन हो गया, राइट। सो बाकी का एक्सप्लेनेशन वैसा का वैसा ही आप आर एस के जैसे लिख सकते हो, एस आर फ्लिप फ्लॉप के जैसे कि व्हेन जे इज इक्वल टू 1 एंड के इज इक्वल टू 0 योर फ्लिप फ्लॉप विल बी सेट टू 1, when j is equal to 0 k is equal to 1 your flip flop will be reset to 0 and something like that, जो हमने ऊपर ऑपरेशंस में लिखा था वो आप खुद से लिख सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे एस आर था उसकी जगह पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, जे एन के लिखना है, बिकॉज जस्ट द नेम विल बी चेंज, राइट। बिकॉज ये जो सर्किट इन्वेंट किया है, ये जो फ्लिप फ्लॉप इन्वेंट किया उसका इन्वेंटर का नाम ऐसा था, तो उसके स्टार्टिंग के दो दो कैरेक्टर लेके ये फ्लिप फ्लॉप को नाम दे दिया जेके फ्लिप फ्लॉप, और उसमें एक चेंज ऐसा किया कि वो कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, हम उसको टोगलिंग कंडीशन उस पर दे दी, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप, इट विल बी यूज इन द डेवलपिंग द मैनी ऑफ द सर्किट्स ऑल्सो। ये फ्लिप फ्लॉप हम बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कंसेप्ट हम सब लोगों को पता है व्हाट यू मीन बाय यूनिवर्सल, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल। क्लियर है। अब वन थिंग दैट इज लेफ्ट विद दैट इज कॉल्ड द लॉजिक डायग्राम फॉर दिस, हमने ब्लॉक डायग्राम देखा, वी हैव आल्सो डिस्कस द ट्रूथ टेबल। सो व्हाट विल बी द, सो फॉर क्रिएटिंग जेके वी विल नीड टू यूज द आरएस फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट, आरएस या एसआर, हमको पहले एसआर का, because SR is a basic, everywhere it will be used, in every of the flip flop the SR flip flop will be used, so that basic diagram we need to take and some extra thing we need to add with that, just the diagram of the SR flip flop। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, what you feel change in this logic diagram of the JK, क्या दिख रहा है आपको, क्या change है यहाँ पे, what change you will just feel, see this, just you just observe this particular part, ये पार्ट ऑब्जर्व करो, दिस इज द डायग्राम ऑफ विच फ्लिप फ्लॉप, ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो कौन से फ्लिप फ्लॉप का है, एस आर, यस। ओके, तो एक्स्ट्रा हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, व्हाट एक्स्ट्रा वी आर एडेड ओवर हियर, जस्ट पुटिंग एक्स्ट्रा नैंड गेट, बिकॉज एस आर इज अ बेसिक फ्लिप फ्लॉप, तो वो तो हर एक जगह पे यूज होगा, तो उसके अंदर हम और एक्स्ट्रा क्या पास कर रहे हैं, दैट इज जे एंड के विल बी एक्स्ट्रा पास्ड ओवर हियर एंड अगेन द सेम मैकेनिज्म ऑफ द फीडबैक विल बी पास, तो यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है दैट विल बी गोज टू द इटसेल्फ, ये खुद में ही जा रहा है, सी हियर, इसका जो आउटपुट है उसके खुद में यहाँ पे जा रहा है, वो तो हमने जो आगे एसआर में देखा था ना ये वाला, वो यहाँ से जाएगा, देखो यहाँ पे इसका जो जे का आउटपुट लाइन है दैट विल बी गोज इनटू दिस के एंड दिस के आउटपुट लाइन विल बी गोज एज एन इनपुट ऑफ दिस टू गिव अ फीडबैक टू नो दैट कि भी ये सर्किट कौन से स्टेट में है, और क्लॉक दोनों में पास होगा, इसलिए हम क्लॉक ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, है ना, because we need to synchronize the operation so that the clock will be seen something like this, and here it is q and here it is q bar, so just you need to first draw this, that is the SR, and along with that you just connect one more NAND gate with this, यहाँ पे just एक NAND gate को ऐड करना है और उसको यहाँ पे पास करना है, ठीक है, एंड द सेम मैकेनिज्म दैट यहाँ से जो आउटपुट जा रहा है वो K में आएगा और K का जो आउटपुट जा रहा है वो J में पास करोगे,
So this is how you can draw the logic diagram for the JK. You need to practice at your home for once also, right? Then and then you got that how you can actually draw it. एक बार draw करोगे तो समझ में आएगा कि actually draw होता कैसे. ऐसे देखने से नहीं पता चलेगा, तो today you need to be practice at home. ठीक है ना? ऑफलाइन सेशन एक दो दिन में शुरू हो जाएंगे. ना आस्क एनीवन टू ड्रॉ इट. कभी मैं पूछूंगी क्लासरूम में कि भाई ड्रॉ करके दिखाओ. तो यू नीड टू बी प्रैक्टिस एट योर होम. क्या बोल रही हूँ? येस और नो? यस. एस आर एंड जे के एंड हाफ एडर एंड द फुल एडर, दिस आर द, अभी तक हमने ये 4 सर्किट्स आई है. ठीक है. एंड द लॉजिकल गेट्स, वो जो गेट्स हैं उसका तो अलग है. ठीक है. तो ये सर्किट्स आपको चारों चार सर्किट्स यू नीड टू ट्राई टू ड्रॉ एट योर होम. ठीक है. घर पे प्रैक्टिस करो एक बार. एनी टाइम आई विल आस्क यू टू ड्रॉ इन द क्लासरूम. कभी भी मैं आज को आपको पूछ सकती हूँ कि भाई चलो ये ड्रॉ करके दिखाओ, ये ड्रॉ करके दिखाओ, और एनीवन कैन बी कम ऑन द बोर्ड एंड ड्रॉ इट. समझ में आ रहा है? यस. सो यू नीड टू बी प्रैक्टिस वेरी हार्ड टू ड्रॉ दिस. डोंट मग अप द थिंग्स, राइट? You just need to understand it and then draw it. Clear up to here, everyone? Today we are learned the two flip-flops, that is S, R and JK. Two more flip-flops are left that we'll discuss in the next lecture, right? अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं. बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. दैट इज द डी फ्लिप फ्लॉप एंड द टी फ्लिप फ्लॉप, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. Okay, you can now hang up for the session. Anyone is having any doubts, they can